السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، مولانا محمود مدنی کے خلاف اب بریلی شریف سے بھی اعلان ہو چکا ہے۔ مولانا توقیر رضا خان صاحب نے مولانا محمود مدنی کے حوالے سے ایک بہت بڑا چونکانے والا بیان دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ مولانا توقیر رضا خان صاحب کا یہ بیان ضروری ہے، یہ سن لیجئے، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ لیکن سدبھاونا میں اتنے ہم غرق ہو جائے کہ عمر اور اللہ کو ایک کر دیں تو پھر بچتا کیا ہے؟ ویسا نہیں چلے گا۔ نہیں، دیکھیے اسلام کی کچھ حدود ہیں، بالکل ان حدود سے جو باہر گیا وہ گیا، سے اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو تجاوز کر رہا ہے وہ بھی غلطی کر رہا ہے۔ تو سدبھاونا ضروری ہے، لیکن سدبھاونا کے لیے اوم اور اللہ کو ایک کرنا۔ اچھا، مسلک میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جو ان کے عقائد ہیں وہ ان کا اور ان کی قبر کا معاملہ ہے۔ جو میرا عقیدہ ہے تو مگر آپ نے کھلے طور پر بیان کرنے کہہ دیا تھا یہ، لیکن ہماری مسلم بستیوں کا حال دیکھیے جا کے، تو یہ ہمارے ساتھ ایماندار کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایماندار کوئی نہیں ہے۔ ہمارا یوز اینڈ تھرو کا کام تمام لوگ کر رہے ہیں۔ یہی کام اگر مسلم قائدین بھی اگر کر رہے ہیں تو اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بتا، اجرت مانگی جا رہی ہے کہ ہم نے کل تمہارا کام کیا تھا، رسول اعظم کی شان میں گستاخی ہوئی، ہم نے اتنی بڑی ریلی نکالی، اب ووٹ دو، اب ہمیں ہمارا حق ہے تمہارے ووٹ پہ۔ تھوڑا سا طریقہ بدلنا پڑے گا ہمیں۔ تو تھوڑا سکھائیے نا، داؤ پہ سکھائیے، مطلب تھوڑا بتائیے، بات کیجیے۔ آپ تو ملے تھے ابھی مہاراج جا کر کے، میرے خیال سے بھی نہیں، دیکھیے ایسا ریلی میں شامل ہوئے تھے، بتائیے۔ وہ بہت قابل شخصیت ہے، ان کو سکھانے، وہ تو بریلی چناؤ لڑنے جاتے ہیں، بریلی میں میں موجود ہوں، میری پارٹی موجود ہے، میرے یہاں اپنے امیدوار اتار کے آتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ حیدرآباد سے آپ کے آنے سے پہلے یو پی میں بھی، مہاراشٹر میں بھی، بنگال اور باقی جگہوں پہ، باقی صوبوں میں چھوٹی چھوٹی جتنی جس کی طاقت تھی انہوں نے اپنے تنظیمیں بنائی ہوئی تھی اور کام کر رہے تھے، پارٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ ان تمام، اگر آپ ایماندار ہو تو آپ کو جانا چاہیے کہ بھائی تمام پارٹی متحد ہو کے بیٹھو، اب اس بات کا وقت نہیں ہے کہ آپ الگ الگ چلتے رہیں۔ تو یہ کام اگر کیا ہوتا تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ ڈسٹینس، اب ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اویسی صاحب کو جہاں سے ان کو ڈائریکشن ملتی ہے وہاں سے یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ کی سرپرستی تب تک کی جائے گی، آپ کی دیکھ بھال تب تک کی جائے گی جب تک آپ کسی کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے۔ اگر ان تمام چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو، دلتوں کو، ان لوگوں تمام کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو پھر ہمارا آپ کا کوئی ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو بہت سارے، تو یہ اس شبہ کا ازالہ کرنا کس کی؟ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ مجھ پر جو الزامات ہیں ان کی جواب دہی میری ذمہ داری ہے، مجھے وضاحت کرنی چاہیے۔ اگر میں ایمانداری سے کام کر رہا ہوں اور اگر میں پرواہ نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی کچھ کہتا رہے ہمیں تو یہ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایماندار نہیں ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جس کا جو شبہ ہے اس کا ازالہ کرنا ہے، ہمیں وضاحت کرنی ہے کہ ہمارے اوپر یہ بہتان ہے، الزام ہے۔ بالکل، اور اتنے بھی غرق مت ہو جاؤ، جیسے سدبھاونا کی بات ہوتی ہے، جی سدبھاونا بہت اچھی بات ہے، سدبھاونا قائم کی جانی چاہیے اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ملک میں سدبھاونا بنی رہے۔ لیکن سدبھاونا میں اتنے ہم غرق ہو جائے کہ عمر اور اللہ کو ایک کر دیں تو پھر بچتا کیا ہے؟ ویسا نہیں چلے گا۔ نہیں، دیکھیے اسلام کی کچھ حدود ہیں، بالکل ان حدود سے جو باہر گیا وہ گیا، سے اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو تجاوز کر رہا ہے وہ بھی غلطی کر رہا ہے۔ تو سدبھاونا ضروری ہے، لیکن سدبھاونا کے لیے اوم اور اللہ کو ایک کرنا۔ اچھا بات، میں نے کال کیا تھا آپ کو جے پور سے، انٹرویو دیکھتے ہوئے کسی نے مجھے دکھایا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم دیوبندیوں کو مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی آج بھی اسی موقع پہ ہے یا وہ ہے؟ چلا کے دکھا دوں گا میں، آپ اگر کہیں گے۔ نہیں، میں تو کلیئر کٹ کہتا ہوں کہ ہمارا، میں جو اتحاد کی بات کرتا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اتحاد ملکی معاملات میں باقی تمام تکلیفوں، کیونکہ ان کی پریشانی اور میری پریشانی ایک ہے۔ انہیں دیوبندی نہیں سمجھا جا رہا ہے، مجھے بریلوی نہیں سمجھا جا رہا ہے، انہیں شیعہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ
तमाम लोग उन्हें वो हिंदूवादी संगठन, ये सरकार और ये तमाम लोग मुसलमान समझ रहे हैं। तो मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए इन तमाम तकलीफों से। नहीं, आपका उस पर सुनिए, मैं वही बता रहा हूँ, हाँ। इन तमाम तकलीफों से लड़ने के लिए। लेकिन मसलक में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो उनके अकायद है वो उनका और उनकी कब्र का मामला है। जो मेरा अकीदा है, तो मगर आपने खुले तौर पर ऐलान करके कह दिया था ये। और जब हम साथ गए थे देवबंद, तब आपने कहा था कि असल बरेलवियत पर तो ये लोग चल रहे हैं। मुझे याद है वो अल्फाज की, मतलब यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए मगर ये लोग कर रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे मज़ारात पे कितनी दूर रहने, आला हजरत ने वजाहत की है। बिल्कुल। अब मैं देखता हूं कि कहीं सजदा जैसी पोजीशन आ रही है, तो मैंने सख्ती से यह कहा कि ये तो हमारा तरीका ही नहीं है, ये तो हमारे मसलक के खिलाफ है, ये इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। तो वो हमारे ऊपर बहुतान है कि हम ये कब्र पूजने का काम करते हैं, ये सजदा करने का काम करते हैं। तो मैंने देखा देवबंद के इलाकों में, मैं जब देवबंद जा रहा था तब मैंने रास्ते में देखा एक आध मज़ार पे वो ये काम हो रहा था वहां। तो वहां तो मैं मज़ारात की देखभाल नहीं कर रहा था, वहां कौन कर रहा था? बिल्कुल। तो उन लोगों गाजियाबाद में आपने देख करके कहा था ये, है? गाजियाबाद के एक मतलब मज़ार पर जाने के बाद जब बाहर निकले तभी आपने ये बात कही थी, ऑब्जर्व करके कि ऐसा नहीं है। मगर बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचती है, उनके ऊपर बात रखना जरूरी, चूंकि बार बार आप कह रहे हैं कि ओवैसी को वजाहत करनी चाहिए, तो आपकी तरफ से भी वो बात जानी चाहिए, चूंकि आपसी भाईचारगी और ये जो है मतलब वो बहुत जरूरी है। की इख्तिलाफ का जो आपने जिक्र किया है, देखिए ऐसा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद होना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि उनको मुसलमान समझा जाता है, हमें मुसलमान समझा जाता है। तो वो लोग हम में फर्क नहीं करते। तो हम जब कहीं लिंचिंग हो जाती है, जैसे नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया, या अखलाक की लिंचिंग कर दी गई, अब वो ये नहीं पूछते कि भाई आप किस मसलक के हो। अब नहीं, हमें भी तहकीक नहीं कि वो किस मसलक के हैं। हम ये समझ के कि मुसलमान मार दिया गया, मुसलमान के साथ जुल्म हो गया, तब हम मसलक की तहकीक क्यों नहीं करते कि वो किस मसलक से ताल्लुक रखता है और उस मसलक के लोग ही उसके गम में शरीक हो, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं तो ये बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। तो अकीदा आपका आपके साथ है, मेरा मेरे साथ है, और मेरा अकीदा मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, आपका अकीदा आपके और अल्लाह के बीच की बात है। बिल्कुल ठीक है। अकीदे में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं, लेकिन बाकी मुल्की मामलात में हमें और आपको नहीं, बल्कि हमें हिंदू समाज के बीच जो बाशऊर लोग हैं, जो सुलह पसंद लोग हैं, जो अच्छे अखलाक के लोग हैं, उनके साथ हमें दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए। आपको मुनज़्ज़म साजिश चल रही है मुस्लिम बस्तियों में, आप जाकर देखो, मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के नौजवानों में नशा आम नशा, तकरीबन सब जगह आम नशा, और पूरे हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, कोई सूबा और कोई शहर इससे बचा हुआ नहीं है। सच्चाई है। मुसलमानों को जलील करने का काम, मुसलमानों की बस्तियों का आप हाल देखिए जाके। सरकार हमारी है, हमारी बनाई हुई है। सही। दिल्ली की सरकार किसकी है? हमारे दम पे बनाई गई है, आरएसएस ने नहीं बनवाई है। लेकिन हमारी मुस्लिम बस्तियों का हाल देखिए जाके। तो ये हमारे साथ ईमानदार कोई नहीं है, हमारे साथ ईमानदार कोई नहीं है। हमारा यूज एंड थ्रो का काम तमाम लोग कर रहे हैं। यही काम अगर मुस्लिम कायदीन भी अगर कर रहे हैं तो इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। अच्छा, ये बता, तो ये तो एक तरह से ऐसा हो गया कि हमसे उजरत मांगी जा रही है कि हमने कल तुम्हारा काम किया था, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी हुई, हमने इतनी बड़ी रैली निकाली, अब वोट दो, अब हमें हमारा हक है तुम्हारे वोट पे। तो ये जो इस किस्म का जो माहौल है, ये माहौल बहुत बिल्कुल ठीक है। मेरा जो सवाल था वो ये था कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है और वो हर लेवल पर है और हर जगह है। और फिर नशे के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? मैं नशे के खिलाफ हमारे उलमा क्या कर रहे हैं? इसमें इस वक्त सबसे बड़ी जो जरूरत है वो मुसलमानों में
इस्लाह की जरूरत है। जी, जी। मुसलमानों के घरों में इस्लाम ऑनरशिप लेने की भी जरूरत है। मैं जो सवाल है मेरा वो ये है कि देखिए सबकी जिम्मेदारी, एजेंसीज की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी, लोकल लीडरशिप की जिम्मेदारी, सबकी है, तंजीमों की सबकी जिम्मेदारी नहीं मेरी है। बात तो सुनो, जिन पर आवाम ने भरोसा किया हुआ है, उनकी ज्यादा है। अपनी क़यादत जिनकी ज्यादा है, की हुई है, उनकी ज्यादा है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ज्यादा है। लेकिन जहां मेरे प्यारे नाजरीन, मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब का बयान तो आपने सुन लिया, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान गलत फहमी का शिकार हैं और वो ये सोचते हैं कि सुन्नी, देवबंदी, शिया, वहाबी हैं, ये कैसे एक हो सकते हैं। अरे भाई, एक होने के लिए कहा जा रहा है, ये अपने अकीदे की लड़ाई के लिए कहा जा रहा है, जो माहौल क्रिएट किया गया है उसके लिए, ना कि अकायद और मसलक के एतबार से। भाई, सुन्नी का जो अकीदा है वो उसके साथ रहेगा, और देवबंदी, वहाबी का जो अकीदा है, शिया का जो अकीदा है, उनके आमाल जो हैं उनके साथ रहेंगे। मसलक के एतबार से एक होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जब किसी मुसलमान की लिंचिंग की जाती है तब ये सवाल नहीं खड़ा होता है कि वो सुन्नी है, देवबंदी है, वहाबी है, शिया है। तो ऐसे माहौल में मुत्तहिद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो बातिल का निज़ाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों। अभी आपने गुजरात में भी देखा कि रातों रात वहाँ पर मस्जिद, मज़ारात, बहुत सारे मकानात गिरा दिए गए हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह, उसको शिव मंदिर करार देने की मांग की जा रही है। दिल्ली की शाही ईदगाह में झांसी की मूर्ति लगाने की बात की जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि मुसलमान मुत्तहिद होना बहुत ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है। मेरे प्यारे नाजरीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। और आपने देखा कि ऐसे माहौल में जहां मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं, और वहीं पर मौलाना महमूद मदनी का कितना बेहुदा बयान आया है कि मुसलमान पागल हैं। जो इम्तियाज़ जलील साहब के साथ मुंबई रैली में गए, ओवैसी साहब पर मुकदमा होना चाहिए। वो कोई नेता नहीं है, मुसलमान उनको अपना नेता नहीं मानते हैं, अपना लीडर तस्लीम नहीं करते हैं। कितना बेकार और शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है।